Good evening and a very warm welcome to our respected guest speaker, Dr. Harish Patankar sir, and all the participants present here. I am Vaidya Yash Chaudhary, founder of Yasart Vida Foundation, here to fulfill the aim of Yasart, bring you this 43rd online webinar of Ayur Samarpan series. First of all, I appreciate your kind interest while joining our today's online session and showing your constant love and support towards Yasart. Now, without taking much time, I am handing over to Dr. Vivek sir. Over to you, sir. Yes, very good evening to the, I can say, a biggest webinar which we have planned on one of the most unique concept of Ayurvedic trichology. First, I welcome Dr. Harish Patankar sir, a pioneer of Ayurveda trichology, someone who has set the trend, which is going to be a guiding pathway for many practitioners. When we talk about hair, we hear Dr. Harish Patankar. So let's start with this journey. Before that, I want to have some chat with all of you. So I think we will wait for next 2 minutes and then we'll continue next 2 minutes so that all the people can join, because I'm getting messages that they all are joining. So just 2 minutes for all of them to join. Yes, so let's start with the session. Yes, so I welcome all of you in the certificate course in Ayurvedic trichology on online platform, which is mainly mentored by Dr. Harish Patankar sir. As you all know, the person who had set the trend to blend Ayurveda science, Ayurveda tattvas with modern technology. So when we talk about hair, we need to understand some concept and why hair is the most important part which can give Ayurveda practitioner a biggest boost in his whole life, whole practice, and his whole Ayurveda journey. That's why we are going to start and explore the various opportunity for a BMS doctors in hair problems, in scalp problems with Ayurveda way. And that's where we stand in Ayurvedic journey. Okay, so basically this hair and scalp health, is a very biggest and vast topic. We have we can integrate a modern technology and Ayurveda perspective in hair and create a big world out of it. Why I am saying this? Because when you look at the global hair care market, you will be surprised to see the numbers. You can't even read the numbers. आप इस ग्लोबल हेयर और स्काल्प के मार्केट की तरफ देखेंगे तो आपको सरप्राइज हो जाएगा कि इतना कुछ चल रहा है और आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर इसमें कहीं पे भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, यू कैन सी इट इन अ स्लाइड. ग्लोबल हेयर केयर मार्केट ये 113.9 बिलियन यूएस डॉलर इसकी इतना बड़ा मार्केट ये हो चुका है. उसमें से सिर्फ शैम्पू के बारे में बात की जाए तो 34 करोड़ 68 लाख करोड़ का बिजनेस सिर्फ शैम्पू के बारे में होता है. कैन यू बिलीव इट? Whenever we are talking about hair health, scalp health, the global hair market is already overtaking all these things. The shampoo market, the soap market, the global hair oil market is getting to the skies. And we should definitely ask ourselves a question: इसमें आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, इसमें आयुर्वेदा डिग्री होल्डर कहाँ है? और ये डिग्री होल्डर कहाँ है, ये ढूंढने का ट्रैवल आज से आपका शुरू होने वाला है. इसलिए ये जानना बिल्कुल जरूरी है कि ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. इंडियन ब्रांड्स की बात अगर करेंगे तो बहुत सारे ब्रांड्स अभी है. ट्राया जैसा ब्रांड है जो अभी 61 करोड़ से जिसकी शुरुआत हुई, उसका अब लास्ट ईयर का टर्नओवर है 236 करोड़. So you can see the travel from 61 crore to 236 crore for a single brand which only deals with the hair care market. उसका valuation अभी 236 crore है.
पिलग्रिम जैसा ब्रांड है, कपिवा जैसा ब्रांड है, मामा अर्थ जैसा ब्रांड है, इतनी सारी चीजें हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 450 ऐसे बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट्स जो हेयर के बारे में बात करते हैं, वो अभी अभी फंडेड हुए हैं गवर्नमेंट से और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से। इसमें आयुर्वेद प्रैक्टिस का होना ये बिल्कुल जायज है। आगे जाके हम बात करते हैं तो ये गैप क्यों हो रहा है। ये गैप होने की सबसे बड़ी रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस। नंबर 1, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि हेयर का मार्केट है क्या और हेयर में हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, एक्सपोजर नहीं है। तीसरा, ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग ना होने की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं है। दैट्स वाई हेयर का मार्केट हम आयुर्वेद प्रैक्टिशनर को ग्रैब करना ये बहुत डिफिकल्ट जा रहा है और वी आर लिटरली इग्नोरिंग दैट बिगेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि ये हेयर का मार्केट या हेयर हेल्थ सॉल्यूशन को किसने लीड करना चाहिए, और इसका दूसरा कोई भी आंसर नहीं है। इसका एक ही आंसर है, वो है आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर। क्यों? क्योंकि हमें आयुर्वेदा के थ्रू बहुत अच्छी समझ है बालों की, बहुत अच्छी समझ है हेयर की, बहुत अच्छी समझ है दिनचर्या की, ऋतुचर्या की, और उसके थ्रू हम ये हेयर केयर का मार्केट बिल्कुल आगे लेके जा सकते हैं। सो देयर इज अ नो डाउट दैट बीएमएस डॉक्टर्स आर दी टॉर्च बियरर फॉर हेयर एंड स्कैल्प हेल्थ इन द फ्यूचर। तो ऐसा ही एक विजन लेके डॉक्टर हरीश पाटनकर सर ने 2004 से अपनी जर्नी शुरू की आयुर्वेदा की, और एक ही मन में ठाना कि आयुर्वेदिक हेयर टेस्टिंग का डायग्नोस्टिक मॉड्यूल रेडी करना है और उसके थ्रू साइंटिफिकली हेयर केयर यूज करना है। केशा आयुर्वेद नाम की शुरुआत यहां से हुई। आपको आयुर्वेद प्रैक्टिशनर को केशा आयुर्वेद को एक बहुत अच्छी केस स्टडी जैसे बात करनी चाहिए। केस स्टडी के थ्रू, इंस्पिरेशन के थ्रू हमें देखना चाहिए। Okay, so I'm talking about Dr. Harish Patankar sir's vision and how he has created a whole world using single hair stand. You can see in the image, starting with the single hair stand, and now worldwide 108 centers only on the hairs. So you can understand we are not just learning about trichology or hair, we are sitting on the $113 billion hair care business. That's why we need to explore ourselves. We need to see ourselves in a way that we are going to be part of this biggest hair care market. And that's why I'm giving you a simple growth pathway. Number 1 in that is upgrade your skill, do various things, upgrade your training, then establish a dedicated clinic for specialized hair consultation, develop a signature protocol, create your effective product, build a strong brand, and then scale, because sky is the limit. You have just saw the numbers which I was talking about, the gravity of those numbers. You can't even read the numbers, so you can understand what I'm trying to say. And that's why I'm now giving away to a pioneer of this whole brand, Dr. Harish Patankar sir. So without further ado, I will request Dr. Harish Patankar sir to start his speech. Thank you all. तो मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से इस कोर्स को एंजॉय करेंगे। ये थोड़ा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो कभी कभी जुड़ने तक थोड़ी सी कठिनाई कभी कभी होती है, लेकिन एक बार ये शुरू हो गया तो आप एंजॉय करना शुरू करते हैं, नॉन स्टॉप लर्निंग शुरू हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपको अलर्ट भी रखना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है तो थंब दिखाइए। थोड़ा सा जागरूक रहिए, सब लोग एंजॉय कीजिए। यस, थैंक यू ऋषिकेश जी, स्नेहा जी, सब लोगों का मेरा प्रणाम, नमस्ते। प्रणव जी गुड, वैशाली, प्रिया, जयश्री, भूमिका, शिफा, अच्छा आप भी है। विराल जी, चलो अच्छा लगा, सब लोग यहाँ पे, सिद्धि, सब लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देव जी, प्रथमेश, दिव्या, भारती, नेहा जी, वेलकम। दैट्स ऑल आर वेरी इंथुजियास्टिक। सिमरन भी है, राजश्री, श्रद्धा, आकांक्षा, संजीवनी, चलो बहुत अच्छा लग रहा है।
यही प्यार आपको कंटिन्यू रखना है, शास्त्र सीखना है, शास्त्र को बढ़ाना है। लव आयुर्वेदा, लर्न आयुर्वेदा, लिव आयुर्वेदा, एक मिशन लेके चल रहे हैं। आयुर्वेद में हम सबको साथ में काम करना है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया के हर एक कोने तक आपको आयुर्वेद पहुंचाना है। जब हमें पता नहीं होता है तो हम उससे डरते हैं। ज्ञान इज इक्वल टू निर्भीडत्व, अज्ञान इज इक्वल टू भीति। ये स्तंभ लोग सबका आ रहा है, प्रतीक्षा है, रेशु है। ओके, दैट्स ग्रेट। तनुश्री, रूपाल, सबको मेरा प्रणाम। तो ज्ञान आज का सिद्धांत है, आप नोट करके लिख सकते हैं। ज्ञान इज इक्वल टू निर्भीडत्व, अज्ञान इज इक्वल टू भीति। कोई भी चीज का डर हमें कब लगता है? जब हम उसमें काम नहीं करते हैं तो हमें उसका डर होता है। लेकिन जब हम उसमें काम करते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो उसका जो डर है वो हमारा चला जाता है, अपने आप हमें अच्छा लगता है। जब हमने प्रैक्टिस भी शुरू नहीं की थी, आयुर्वेद करें या ना करें इस सोच में हम थे, तब हमारे गुरुजी ने हमें केश आयुर्वेद करने को बोला। ओके, 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 2004 की। मेरे आदरणीय गुरुवर्य जमोदग्नि सर, ओके, आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं हमारे गुरुजी का, और उनके साथ में जो है वो उनके भी गुरुजी हैं, हमारे परम पूज्य सदगुरु श्री माधवनाथ महाराज। दोनों को प्रणाम करके मैं आज का जो मेरा व्याख्यान है वो शुरू करता हूँ। ओके, तो जब हमें विजन नहीं थी, आयुर्वेद भी करे या ना करे इसके बारे में शंका थी। पीपीटी सबको दिख रही है ना? सब लोग फिर से एक बार हाथ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। यस, थैंक यू, यस यस यस, थैंक यू वेरी मच। तो इसका मतलब गुरुजी के दर्शन आपने किए। ओके, गुरुजी के भी दर्शन आपको हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली इस कोर्स का उत्साह जो है वो और बढ़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वायु पित्तम कफश्चैति त्रयोदोषा समासतः। हमारे गुरुजी हमें हमेशा बताते थे कि एक बार आप आयुर्वेद में आए तो आपको जनि, स्थली, मणि, काष्ठी, पाषाणी, हृदय, केवल आयुर्वेद 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 दिखना चाहिए। आयुर्वेद ही आपकी पहचान होनी चाहिए, और हर एक चीज में आपको आयुर्वेद के एंगल से ही उस चीज का विचार करना है। तो भागवत जब पढ़ते हैं हम, उसमें आता है अथा तो आयुष कामी अध्याय व्याख्या से महा, तो आपको वो पढ़ना है अथा तो केशायुष कामी अध्याय व्याख्या से महा। अगर हम केश की बात करेंगे तो केशायुष कामी अध्याय व्याख्या से महा पढ़ेंगे। अगर हम कायायुर्वेद की बात करेंगे तो अथा तो कायायुष कामी अध्याय व्याख्या से महा बात करेंगे। वैसे ही आपको जो भी आगे जाके डेवलप करना है, श्वेत्र आयुर्वेद डेवलप करना है, गर्भ आयुर्वेद डेवलप करना है, नेत्र आयुर्वेद डेवलप करना है, दंत आयुर्वेद डेवलप करना है। देखो, आयुर्वेद की मेथोडोलॉजी एकदम सिंपल है, सटीक है, दी बेस्ट है। 5000 साल हो गए, चौथा दोष आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। वायु पित्तम कफ च इति त्रयोदोषा समासता, दोष 3 ही। तो ये आयुर्वेद की ब्यूटी है, 5000 साल से इससे कुछ अलग नहीं आया है। तो आपको यही अच्छे से सीखना है। तो एक केश में छिपे हुए 3 दोष, एक केश में छिपे हुए 7 धातु, एक केश में छिपे हुए 3 मल, पंचमहाभूत, षड्रस और एकादश विद भाव। पैटर्न इन सिंपल 3 + 7 + 3 + 5 + 6 + 11। ये पैटर्न आप सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। और ये जो पैटर्न है वो मैं फॉर एग्जांपल आपको सिखा रहा हूं। आप ये व्याख्यान सुन के आपके मन में जो भी प्रैक्टिस करना है, गर्भ आयुर्वेद की, श्वेत्र आयुर्वेद की, कर्ण आयुर्वेद की, या फिर चाहे यकृत आयुर्वेद की, जो भी आपको प्रैक्टिस करना है वो इसी पैटर्न से आप कर सकते हैं। मैं केश एज ए एग्जाम्पल सिखाऊंगा, हम सीखने वाले तो आयुर्वेद ही है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इसी श्लोक का थोड़ा सा सूत्र विस्तार करते हैं। दिस इज सिंपली द डीकोडिंग ऑफ कोड लैंग्वेज। आप यहाँ पे जो घड़ी देख रहे हैं, उस घड़ी में भी जो 3 फोर्थ है, ओके, वो भी एक वात का है, एक पित्त का है और एक कफ का है। जो दुबला पतला होता है, सेकंड काटा जिसको हम कहते हैं, वो बात का है। प्रियंका जी, आपको कुछ कहना है तो आप मैसेज डाल सकते हैं, जिसको भी जो भी कहना है आप हाथ ऊपर करते हैं। लेकिन अभी हम कंटिन्यू बात करेंगे, आप लोग मैसेज करो। और कोर्स मतलब आज का दिन खत्म होने के बाद हम 15-20 मिनट केवल क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आंसर में आप और एंजॉय कर पाएंगे। आपको जो भी प्रश्न है वो आप उस समय पूछ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम वात का कांटा देख रहे हैं जो छोटा है, दूसरा पित्त का है जो मीडियम है, और तीसरा कफ का है जिसको हम आवर का बोलते हैं, कफ का है।
तो ऐसे इस प्रकार से एक घड़ी में भी वात पित्त कफ है, एक हेयर में भी वात पित्त कफ है। तो जैसा गुरुजी ने कहा, जनि स्थली मणि काष्ठी पाषाणी हृदय, आपको सब जगह पे आयुर्वेद 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 और वात पित्त कफ ही आगे से देखना चाहिए। आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ आपका झगड़ा होता है, तो आप कहते हैं कि नहीं इसका दोष ही ऐसा है, इसके कारण मेरा झगड़ा होता है। तो आज से केवल दोष मत कहो, आज से कौन सा दोष है वो आइडेंटिफाई करो उसका। उसके वात दोष के कारण झगड़ा होता है, उसके पित्त दोष के कारण झगड़ा होता है, या उसके कफ दोष के कारण झगड़ा होता है। झगड़ा भी क्यों होता है वो आप फाइंड आउट करो। तो आप कोई भी चीज करते समय अगर एक प्रश्न पूछने की आदत खुद को डालेंगे तो आयुर्वेद बहुत जल्दी आप समझ पाएंगे। आजकल क्या हो रहा है कि आयुर्वेद हम बुक में पढ़ रहे हैं और बुक से बाहर उसको नहीं निकाल रहे। तो आयुर्वेद को ना बुक से बाहर निकालना शुरू करो। मैंने बीच में एक बहुत अच्छा बुक पढ़ा था और उस बुक में पूरा लोगों का पर्सनालिटी का वर्णन था। ओके, और उसमें पूरा शिव स्वरोदय शास्त्र जैसा बुक है, आपने भी पढ़ा होगा। तो ऐसा नासिका वाले लोग कैसे होते हैं, ऐसे भ्रू वाले लोग कैसे होते हैं, ऐसे आंखों वाले लोग कैसे होते हैं। तो इस प्रकार से धीरे 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 पूरा रचनात्मक वर्णन था, और ये लोग कैसे बिहेवियर करते हैं, उनके बिहेवियरल पैटर्न क्या क्या होते हैं, उसके बारे में उस बुक में पूरा डिटेल में जानकारी है। आपको भी पढ़ना है तो आप शिव स्वरोदय ये बुक लीजिए और आप थोड़ा सा उसका भी अध्ययन कीजिए। तो सर हमेशा कहते थे, कोई हम कैंप पे भी गए, 100 पेशेंट आ गए, तो 100 इस बार कैंप में 100 पेशेंट के केवल टंग देखने का, टंग देख के डायग्नोसिस करने का, तो आपका एक डायग्नोस्टिक पैटर्न दिमाग में तैयार होता है। नेक्स्ट कैंप में क्या करने का, 100 पेशेंट देखना है तो केवल नासा उनकी देख के डायग्नोसिस मन में करने का, तो आपका और एक पैटर्न सेट होता है। कुछ लोगों का नेक्स्ट कैंप में 100 पेशेंट का केवल आंखें देखो आप, और केवल आंखों को देख के डायग्नोसिस करो। तो इस हर एक की एक ब्रांच मॉडर्न साइंस में क्रिएट हो गई। तो आंखों की ब्रांच को आइरिडोलॉजी कहा जाता है। ओके, केवल ईयर का पिना जो है अपना, तो ये ईयर पिना आप देख रहे हैं, तो ईयर पिना में आप इमेजिन करो कि ये जो है हेड है, गर्भ के अंदर जैसा छोटा बेबी सोया है ना माँ के पेट में, तो ये उसका हेड है, ये इसकी पीठ है, अंदर पांव लेके ऐसे सिकुड़ के बैठा है। तो पूरा ईयर में आपको पूरा बेबी इमेजिन करेंगे तो देखने को मिलेगा। तो उसका जहां पे कर्णवेदन किया जाता है वहां से उसका इम्यूनिटी का पॉइंट है, वहां से लेके हर एक पॉइंट में यथा लोके तथा देहे, इस न्याय से उस पूरे ईयर पिना में भी पूरा का पूरा हमारा बॉडी समाया गया है। तो पीठ की चिकित्सा करनी है, हेड की चिकित्सा करनी है, यकृत की चिकित्सा करनी है, तो उसके ऊपर एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के पॉइंट लगा के लोग चिकित्सा उसकी करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप विजन डेवलप करना शुरू करेंगे कि केवल ईयर देख के डायग्नोसिस करेंगे, केवल नासा देख के डायग्नोसिस करेंगे, केवल कर्ण देख के डायग्नोसिस करेंगे, केवल जिह्वा देख के डायग्नोसिस करेंगे, तो एक एक स्पेशलिटी ब्रांच क्रिएट हो जाती है। हमारे दादाजी जो है वो मल परीक्षण से डायग्नोसिस करते थे। मतलब कोई भी मल आप उसका दर्शन करेंगे तो उससे उसका वो डायग्नोसिस करते थे। उत्तर प्रदेश में एक वैद्य थे, वो किसी भी पेशेंट का बनियान लेके आने को बोलते थे, अंतर वस्त्र कोई किसी का भी लेके जाना है, उसके स्मेल के अकॉर्डिंगली वो डायग्नोसिस करके चिकित्सा लिखते थे। ओके, और एक यूपी में वैद्य थे, वो केवल नाखून के ऊपर आधारित डायग्नोसिस करते थे। तो एक महाराष्ट्र के सदाशिव पेट के एक वैद्य ने क्या किया, उनको कुछ नाखून भेजे और उनको प्रश्न पूछा कि वैद्य जी क्या आप इसके अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस बता सकते हो। तो उधर से वापस में एक जवाब आ गया कि आपने जिस भालू के नाखून भेजे हैं वो कुछ दिन पहले अस्थमा व्याधि से मर गया है, उसको भी अगर समय से निम्नलिखित दवाई आप देते तो शायद वो बच जाता। तो देखो डायग्नोस्टिक का लेवल क्या है। अपने पुराने वैद्य मल परीक्षण से भी निदान करते थे, मूत्र परीक्षण से निदान करते थे। प्रमेय आपको पता है 20 टाइप्स के प्रमेय दिए गए हैं। मैंने सबसे पहले प्रमेय की लैब खोली थी, डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी अपनी, मूत्र परीक्षण वाली। मूत्र परीक्षण करते थे, मल परीक्षण करते थे, श्वेत परीक्षण करते थे, आर्तो परीक्षण करते थे। उसके बाद हमने वमन प्रोफाइल निकाला, विरेचन प्रोफाइल निकाला। सबके बाद हम बालों में अटके हैं। आपको लगता है कि केश आयुर्वेद है सक्सेसफुल है, केश आयुर्वेद का सक्सेस मिलने से पहले 10 अलग फेल्योर होते हैं। अब उसको मैं फेल्योर नहीं कहूंगा क्योंकि फाइनेंशियली फेल्योर यानी फेल्योर होता नहीं है, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, कंसेप्चुअली स्ट्रांग है तो उसको स्ट्रांग नहीं कहते, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया तो उसको सक्सेस कहते हैं।
तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा द्वंद्व है, कोई कंसेप्चुअली भी सक्सेसफुल होता है ना, तो प्रमेय की लैब भी अपनी उतनी ही सक्सेसफुल थी कंसेप्चुअली, अपनी सीमेन एनालिसिस की लैब भी उतनी ही कंसेप्चुअली जो है सक्सेसफुल थे। अपना वमन प्रोफाइल, अपना विरेचन प्रोफाइल, अपना मूत्र परीक्षण, पुरुष परीक्षण, जिह्वा परीक्षण, सब सक्सेसफुल टेस्ट है। लेकिन मार्केट में हेयर की डिमांड ज्यादा होने के कारण हेयर फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गया। कंसेप्चुअली देखेंगे तो सभी लैब जो है वो सक्सेसफुल ही थे, लेकिन बालों में क्या है, आप भी देखेंगे, घर में 5 लोग होंगे तो कोई भी जो है वो आप उनको बोलो मुझे टेस्टिंग के लिए हेयर सैंपल दे दो, वो बोलेंगे सर आप कष्ट क्यों करते हैं, मैं ही आपको बाल निकाल के देता हूं ना। इतना हेयर सैंपल इजीली मिलता है और उसका टेस्टिंग भी इजी जाता है, वो खराब भी नहीं होता है। आप कुरियर से भी टेस्टिंग को भेज सकते हैं, तो 10-15 दिन ट्रैवलिंग टाइम हुआ तो भी उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। जो वमन और विरेचन प्रोफाइल में दिक्कत आती थी, स्टूल और यूरिन एग्जामिनेशन में दिक्कत आती थी, सैंपल को हम प्रिजर्व नहीं कर पाते थे, लेकिन हेयर सैंपल में ऐसा हो गया कि उसका टेस्टिंग इजी गया और उसका रिपोर्टिंग सिस्टम अच्छा एकदम स्ट्रांग हो गया। 17 पन्नों का रिपोर्ट अपना निकलता है, तो जाके डायग्नोसिस परफेक्ट होने के कारण ट्रीटमेंट वैल्यूएशन होता है। तो आपके सामने जो आप स्लाइड देख रहे हैं कि हमारा मोटो क्या है, वो मोटो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया कि डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन ऑलवेज लीड्स टू ट्रीटमेंट वैल्यूएशन। ओके, डायग्नोसिस वैल्यूएशन जो होता है वही हमेशा ट्रीटमेंट वैल्यूएशन करवाता है। ओके, तो आपको भी अभी आपका निदान चेंज करना है। कोई भी हेयर का पेशेंट आपके पास आए तो एक ही बार वो खालित्य का है, एक ही बार पालित्य का है, एक ही बार वो दारुणक का है, एक ही बार वो अरुणशिका का है, या एक ही बार वो इंद्रलुप्त का है। ग्रंथ में केवल 5 ही डायग्नोसिस दिए हैं, खालित्य, पालित्य, दारुणक, अरुणशिका और इंद्रलुप्त। तो बचे हुए ऑलमोस्ट 1000 कंडीशन से जिनमें केश पतन होता है। तो आपको ग्रहणी से उत्पन्न केश पतन, स्थौल्य से उत्पन्न केश पतन, पांडु से उत्पन्न केश पतन, अर्श से उत्पन्न केश पतन, गुल्म से उत्पन्न केश पतन, उन्माद से उत्पन्न केश पतन, ट्राइकोप्टिलोमेनिया नाम का डिसीज है जिसमें पेशेंट खुद ही अपने बाल खींचता रहता है, तो ये उन्माद युक्त केश पतन है। यहाँ पे हम उन्माद की दवाइयां देंगे, मानस मित्र वटक देंगे, श्रीखंड आदि चूर्ण देंगे, चैतन्योदय रस देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ठीक होता है। अब मॉडर्न में ट्राइकोप्टिलोमेनिया की ट्रीटमेंट क्या दे, अगर ऐसा आपको प्रश्न पूछा तो जल्दी जवाब नहीं आता है। लेकिन अगर हम कहें कि ट्राइकोप्टिलोमेनिया को आप उन्माद युक्त केश पतन में ले लो, तो उन्माद की सभी औषधियां आप वहां पे दे सकते हैं। टिलोजन इफ्लोम को आपको क्या ट्रीटमेंट है, ऐसा कहेंगे तो आपको झट से मेडिसिन याद नहीं आएंगे, लेकिन टिलोजन इफ्लोम अतिसार से उत्पन्न होगा तो उसको केशातिसार नाम दे दो और आप वहां पे कुटस घनवटी जैसी औषधि दे दो, लोद्र घनवटी जैसी औषधि दे दो, या लोद्रासो दे दो, खदिरारिष्ट दे दो, तो 4 दिन में बाल गिरना रुक जाते हैं। या फिर केवल तुरटी का नेचुरल क्रिस्टल सोप जिसको कहा जाता है वो भी आप यूज करेंगे और नेचुरल क्रिस्टल सोप वहां पे स्नान के बाद लगाने को देंगे, तो उससे भी हेयर फॉल कम हो जाता है टिलोजन इफ्लोम का। तो जिनके इंस्टेंट हेयर लॉस हो रहे हैं उनको आप ये सिंपल रेमेडी देके भी उनका हेयर लॉस स्टॉप कर सकते हो। वे हेयर लॉस स्टॉप क्यों हुआ, क्योंकि आपने डायग्नोसिस चेंज किया। तो हमेशा याद रखना है, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन ऑलवेज लीड्स टू ट्रीटमेंट वैल्यूएशन। तो पहला रोगम आदौ परीक्षित तदनंतरम औषधम, ग्रंथ में भी कहा है कि हमें रोग की परीक्षा पहले करनी है और बाद में हमें औषधि देना है। तो इसलिए क्या करें, तो आप सिंपल सा टास्क है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन बेस्ड टेक्निक्स यूज विदाउट चेंजिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन बेस्ड टेक्निक्स यूज करनी है विदाउट चेंजिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है आपके पास, आप ये लेटेस्ट डर्मोस्कोप यूज कर सकते हैं, आप स्किन एंड हेयर एनालाइजर यूज कर सकते हैं, आप आजकल नए नए स्किन के स्कैनर आ गए उनको यूज कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं और ये ज्यादा महंगी भी नहीं है, 1,500-2 हजार से शुरू होती है, 70-75 हजार तक अच्छे अच्छे ट्रैकोस्कोप मिलते हैं। तो आप इनको यूज करेंगे प्रैक्टिस में। आप 1-1, 1.5 लाख का फोन लेते हैं, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस डालते वक्त हम अगर कहते हैं आपको कि 10,000 का स्किन एंड हेयर एनालाइजर ले लो, तो आपको एकदम ऐसा लगता है कि खर्चा बढ़ गया। इंटीरियर आप 5-5 लाख का क्लिनिक को करते हो, मैं कितने क्लिनिक के ओपनिंग को स्टूडेंट्स के गया हूँ, 10-10 लाख का इंटीरियर किया है और लैपटॉप भी नहीं लिया है। तो क्या उपयोग है ऐसे इंटीरियर का, आप पेशेंट के लिए लैपटॉप ले लो, आप पेशेंट के लिए एक अच्छा कैमरा ले लो, आप एक स्किन एंड हेयर एनालाइजर ले लो, इससे वैल्यू एडिशन होता है
आप देखेंगे तो पेशेंट आपका कंसल्टिंग फी नहीं देने वाला है, लेकिन मशीन से देखेंगे तो पेशेंट टेस्टिंग का फी देने वाला है। आपका वो 500 रुपए नहीं देगा शायद, लेकिन बीच में मशीन आ गई तो एनालिसिस का और फोटोग्राफी का वो 500 रुपीज आपको जरूर देगा। हेयर टेस्टिंग के 2500 रुपए होते हैं हमारे यहाँ, तो हेयर टेस्टिंग के 2500 वो बहुत जल्दी देता है। याद रखिए, सोनोग्राफी वाला क्या करता है, डॉक्टर सोनोग्राफी करता है तो पेज तो 1 रुपए का ही प्रिंट करके दे रहा है ना, लेकिन सोनोग्राफी के वो 1000 रुपए ले रहा है, 2000 रुपए ले रहा है। और लोगों की वो मानसिकता है, आप टेस्टिंग कर रहे हो तो उसका फी देने की उनकी क्या है, मानसिकता है। दिस इज फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग क्या है, टेस्टिंग करके आपका ज्ञान बढ़ गया ना, आपका वैल्यूएशन हो गया, आपको डिफरेंट हो गया कि दारुणक था या इंद्रलुप्त था, ये केवल खालित्य है या पालित्य है। क्योंकि ग्रंथ में क्या कहा है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षे था तो रोगिणम। रोग की परीक्षा आपको निदान पंचक से करनी है और रोगी की परीक्षा आपको दर्शन स्पर्शन प्रश्न से करनी है। दोनों परीक्षा करनी है। सदाशिव पेट में एक पुराने वैद्य थे, उन्होंने उनके क्लिनिक के बाहर लिखा था, ये थे रोग आणि रोग्याची परीक्षा करून मिळेल। मतलब यहाँ पे रोग और रोगी की परीक्षा करके मिलेगी। तो आपने भी आपके क्लिनिक में रोग और रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। तो दर्शन परीक्षा के लिए स्किन एंड हेयर एनालाइजर यूज करो, डर्मोस्कोप यूज करो। स्पर्शन परीक्षा के लिए आप छोटा मॉइस्चर एनालाइजर यूज करो। कितना सिंपल है, 500 रुपए का इंस्ट्रूमेंट है। अब आप कहेंगे, पेशेंट बोलते हैं मेरा स्काल्प ऑयली है, पेशेंट को कहना चलो हम चेक करते हैं स्काल्प ऑयली है या नहीं है। उसको ऑयली लगता है, मॉइस्चर एनालाइजर लगाओ, कितना परसेंट ऑयली है वो उसको सिखाओ, 1% ऑयली है, 2% ऑयली है, 3% ऑयली है या 5% ऑयली है। प्लस 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 के साइन उसमें आते हैं या फिर नंबर्स भी आते हैं। मेडिसिन दे दो, 1 महीने बाद उसको फिर से बोलो कि देखो हम ऑयलीनेस कितना कम हुआ है वो देखते हैं, चिकित्सा से कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ वो देखते हैं। आप केवल पेशेंट को पूछेंगे ऑयलीनेस कम हो गया क्या, वो बोलेगा नहीं, लेकिन लास्ट टाइम 100 था और अभी 80 हो गया, तो आप टुवर्ड्स प्रोग्रेशन में है ना, तो आप उसको दिखा सकते हैं। इसलिए जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स है, मैं तो हमेशा मजाक में भी कहता हूँ, जिन लड़कियों की यहाँ पे शादी नहीं हुई है ना, उन्होंने लिस्ट निकालने की कि शादी में मामा चाचा मौसी काका काकू सबको बोलना है वो टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन मत दे दो। एक को स्किन एंड हेयर एनालाइजर देने को बोलो, एक को मॉइस्चर एनालाइजर देने को बोलो, एक को थोड़ा लेजर का मशीन देने को बोलो, एक को तो कॉस्मेटिक का चेयर देने को बोलो। ओके, आप आपके शादी में अगर ये चीजें लेंगे तो आप लाइफ टाइम प्रैक्टिस करके खुद का पैसा कमा के घर में जो चाहे वो फ्रिज ला सकते हो, टीवी ला सकते हो, अपने पाँव के ऊपर खड़ा रह सकते हो। लेकिन आप आपका थॉट प्रोसेस नहीं चेंज करेंगे तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस बढ़ने वाली नहीं है। आपको ही आपके पैरों के ऊपर खड़ा रहना है, आपको ही थॉट प्रोसेस चेंज करनी है। और अभी दिवाली आएगी, कोई भी सीजन आएगा, कोई भी चीज परचेस करते समय उसमें 200 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए आप बचाएंगे। 1000 रुपए बचाएंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी की मशीन आती है, पता है आपको। 500 रुपए बचाएंगे तो मॉइस्चर एनालाइजर आता है। 10,000 बचाएंगे तो स्किन एंड हेयर एनालाइजर आता है। आप साड़ी भी परचेस करने जाएंगे मार्केट में, 2 साड़ी पसंद आते हैं आपको, एक 2500 की पसंद आती है, एक 3000 की पसंद आती है। तो दोनों पसंद है ना, तो 2500 की ले लो, बचे हुए 500 रुपए में मॉइस्चर एनालाइजर ले लो। आपका थॉट प्रोसेस चेंज करो ना। आप थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे तो आपका क्लिनिक इक्विप्ड होगा, वेल इक्विप्ड होगा। और वेल इक्विप्ड क्लिनिक जिसका होता है ना, उसके मानो कुरुक्षेत्र में वो है, अपने शस्त्रास्त्र के साथ है। जो व्यक्ति शस्त्रास्त्र से संपन्न है वही युद्ध जीत सकता है, जिसके पास शस्त्रास्त्र नहीं है वो युद्ध नहीं जीत सकता। तो ये अभी युद्ध है, शुरू हुए। आप क्लिनिक में बैठे हैं तो आपको जीतना है, तो आपके पास उत्तमाति उत्तम शस्त्रास्त्र होने चाहिए। ट्रीटमेंट वैल्यूएडिशन के लिए, डायग्नोस्टिक वैल्यूएडिशन के लिए जितने भी लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए। क्या फर्क होता है इंस्ट्रूमेंट से, आप पूछेंगे। देखो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ओके, व्हाट वी मीन बाय वैल्यू एडिशन, डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन। पेशेंट है, नेकेड आई से आपने देखा डैंड्रफ नहीं है वहां पे, पेशेंट भी कह रहा है मुझे डैंड्रफ नहीं है। पेशेंट को आपने स्किन एंड हेयर एनालाइजर लगाया, मशीन से चेक किया, स्काल्प एनालिसिस का फोटो आप देख रहे हैं, ये जो छोटा छोटा देख रहे हैं ना, ये हेयर रूट के ऊपर वहां पे डैंड्रफ है। अब इस डैंड्रफ को आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो ये जो डैंड्रफ है यहाँ पे,
उस डैंड्रफ को कैसे ट्रीट करेंगे आप? तो उनको अगर आप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि देखो आपको तो लगता था कि आपको डैंड्रफ नहीं है, लेकिन एनालिसिस में पता चल गया कि आपको डैंड्रफ है, तो आपका पहला डायग्नोसिस क्या था? खालित्य। अब आपका डायग्नोसिस क्या है? दारुण। पहले आप क्या देते? खालित्य हर तेल। अब क्या आप देंगे? दारुण हर तेल। डिफरेंस है। पहले आप क्या देते? केश औषधि। अब क्या आप देंगे? दारुण हर औषधि। ओके, मतलब आपका पूरा जो विजन है वो चेंज हो जाता है। एक डायग्नोसिस चेंज हो गया तो ट्रीटमेंट अपने आप चेंज हो जाते हैं। दूसरा पेशेंट देखो, पेशेंट कहता है कि सर मुझे यहाँ पे बाल आएंगे क्या? ये मेल पैटर्न टिपिकल बालने से यहाँ पे उसके बाल चले गए हैं। अब आप ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट सेटिस्फाइड है नहीं है, कैसे पता चलेगा हमें? एक काम करने का, पेशेंट को बोलने का कि हम वहां पे बाल आएंगे कि नहीं आएंगे ये पहले देखते हैं। वो देखने का खर्चा 500 रुपए है। आएंगे बाल तो हाँ कहेंगे, नहीं है वहां पे तो ना कहेंगे। आप प्रामाणिकता से काम करो, सत्याचे बळ समाधान। देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप पेशेंट को चेक करते, पेशेंट रेडी हो जाता है, आप वहां पे एनालिसिस करो, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट है, तो आयुर्वेद शास्त्र क्या कहता है? भाव पदार्थ से भाव पदार्थ की उत्पत्ति होती है, तो उसको कमिटमेंट दे दो, आपको बाल आएंगे। उसको चिकित्सा दे दो, बाल आ जाते हैं, पेशेंट खुश, आप खुश। वहां पे हेयर फॉलिकल्स नहीं है तो उसको कमिटमेंट मत दे दो, उसको कहो वहां पे हेयर फॉलिकल नहीं है, आप जाओ हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ। आज पूना में बड़े बड़े ट्राइकोलॉजिस्ट जिनका हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक है, वो भी हमारे पास पेशेंट इसलिए भेजते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार कंफर्म कर दो कि यहाँ को बाल आने वाले हैं या नहीं है। तो पेशेंट का भी माइंडसेट क्लियर हो जाता है। 1 लाख रुपए का हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले 2-2.5 हजार का टेस्टिंग करने के लिए वो जल्दी तैयार हो जाता है। आपको आपका जो सिस्टम है, वैल्यूएशन है, वो सत्य के ऊपर आधारित रखना है। जो मॉडर्न साइंस को समझ में आता है उस प्रकार का डायग्नोस्टिक मेथोडोलॉजी आपके पास रहेगा, तो वो लोग भी आपको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आप शास्त्र के ऊपर चिकित्सा करना शुरू करते हैं। भाव पदार्थ है तो भाव पदार्थ से भाव पदार्थ की उत्पत्ति होगी, अभाव है तो वहां पे भाव पदार्थ नहीं आएगा। या फिर उसको क्रिएट करना है तो आपको रोम संजनन चिकित्सा या सुश्रुत ने बताई हुई आगे की जितनी भी चिकित्सा है वो करनी पड़ेगी, कुट्टन क्रिया करनी पड़ेगी, फॉलिकल्स ओपन करने पड़ेंगे। ओके, तो उसको आप अच्छी तरीके से कंसल्ट कर सकते हो। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, पेशेंट जो थी उसको साइकेट्रिक की ट्रीटमेंट चालू थी। 6 महीना पेशेंट साइकेट्रिक की ट्रीटमेंट ले रही है, डेली सेट्रिजिन ले रही है, सो रही है, दिन भर उसका आलस्य में जा रहा है, आंख खुलती नहीं है, हेडेक होता है। और ये सब क्यों? उसने प्रिस्क्रिप्शन दिखाया, उसको साइकेट्रिक की ट्रीटमेंट चालू। क्यों साइकेट्रिक की ट्रीटमेंट चालू किया? उनका हिस्ट्री ले लिया, उसने बोला कि मुझे बालों में इचिंग होता है। अब इचिंग होता है तो साइकेट्रिक की ट्रीटमेंट क्यों? वो बोली कि मैं हमेशा कंप्लेन करती हूँ इचिंग का, तो सब डॉक्टर दिखा के हो गए, तो उन्होंने साइकेट्रिक का ट्रीटमेंट शुरू किया। अब उन्होंने पेन किलर और ये सेट्रिजिन जैसी दवाइयां दी है, तो अब इचिंग नहीं होता, लेकिन दिन भर ऐसे सो जाऊं ऐसे लगता है। उनको टेस्टिंग का महत्व बताया, उनका एनालिसिस किया, फोटोग्राफी किया, सैंपल कलेक्ट किया, और 17 पन्नों का हेयर टेस्टिंग रिपोर्ट आ गया। जब रिपोर्ट उनके सामने रखा, पेशेंट रोने लगी, दोनों आंखों से पानी, रुकने का नाम नहीं ले रही। पेशेंट को आश्वासन जलम श्रेष्ठम, थोड़ा सा जल दिया, थोड़ा सा शांत किया। अब पूछा उनको शांति से, आप रो क्यों रहे हैं? रिपोर्ट है, रिपोर्ट में कृमिजन्य कंडू, मतलब वहां पे लाउस एंड निट मैनिफेस्टेशन आया है और उसके कारण आपको हेयर फॉल हो रहा है, उसी से आपको इचिंग हो रहा है। इसमें रोने की बात क्या है? उसने कहा सर मैं आपके आभार किस शब्द में मानूं मुझे पता नहीं चल रहा है। मेरे घर में ये इचिंग का प्रॉब्लम मैंने सबको बताया, सबने मुझे धीरे धीरे पागल समझा, बाद में पागलों की चिकित्सा शुरू की। आज किसी फंक्शन में लेके जाते नहीं है क्योंकि मैं डाउन रहती हूँ, लिथार्जिक रहती हूँ, मुझे कुछ काम में इंटरेस्ट नहीं है। आज एक खुशी के आंसू है, मैं कम से कम सबको बता तो सकती हूँ कि मेरा इचिंग जो है वह लाउस एंड नीट के कारण हो रहा था, आपको दिख नहीं रहा था, लेकिन वहां पे वो हाँ, और आज तक किसी ने वो चेकिंग ही नहीं किया। देखो प्रॉब्लम कितना छोटा सा है लेकिन कितना बड़ा भी है। उसके एंगल से देखा जाए तो वो उतना बड़ा भी है। उसको 1-2 महीना ट्रीटमेंट दे दिया, हाई फ्रीक्वेंसी किया, मेडिसिन दे दिया, पूरा लाउस नीट चला गया, उसका इचिंग खत्म हो गया, उसको भी सेट्रिजिन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों खिलाते हो आप?
6 महीना सिट्रिजिन खिला रहे हो, 1 साल साइकेट्रिक्स की दवाइयां चालू है, इससे आपको पेशेंट को भी मुक्ति देना है, आपको भी हैप्पीनेस लाना है, तो आपको लेटेस्ट मशीन, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, ये इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड क्लिनिक आपका रखना ही पड़ेगा, आपको ही मजा आएगी। आजकल हेयर फॉल के कारण शादी टूट रही है कितने लोगों की, अच्छे अच्छे लोगों के, अच्छे अच्छे मेल पेशेंट तो पोस्ट है, सब कुछ है, पर सिर के ऊपर बाल नहीं है, इसलिए अच्छी लड़कियां उनको मिलती नहीं है। आपको हंसी आएगी ये सुनते समय, पर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज का। ओके, कितने एक्टर एक्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे क्लिनिक में आके देखो कितने एक्टर एक्ट्रेस आते हैं डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि उनका पूरा जो एक्टिंग है वो हेयर के ऊपर आधारित है। नेचुरल क्राउन ऑलवेज नेचुरल होता है, वो उसके लिए कितना भी खर्चा करने को तैयार है। तो आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट वैल्यूएशन करो, जैसे डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन है वैसे ट्रीटमेंट वैल्यूएशन करो। यहाँ पे आप हाई फ्रीक्वेंसी की मशीन देख रहे हैं, तो आप पहले क्या करते थे, ट्रेडिशनल वे में एलोवेरा जेल लगाने को देंगे या कोई आप ऑयल लगाने को देंगे। हम क्या करते हैं, वही एलोवेरा जेल या वेलवेक्स जेल क्लिनिक में आके लगाने को देते हैं, मशीन के साथ लगाने को देते हैं, मेजो करने को बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी करने को बोलते हैं। उससे क्या हो जाता है, पेशेंट को ना एक ट्रीटमेंट आ जाता है बीच में, जैसे पंचकर्मा के ट्रीटमेंट होते हैं ना, वैसे एक ट्रीटमेंट आ गया ना, एक प्रोसीजर आ गया। तो प्रोसीजर का पैसा देते हैं, प्रोसीजर ये सर्विस सेगमेंट में आता है। सर्विस से कोई भी सर्विस सेगमेंट, आप भी लोग सर्विस सेगमेंट में है, कोई भी सर्विस सेगमेंट में क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट 10% होती है और उस ट्रीटमेंट की कॉस्ट 100% होती है। मतलब सर्विस सेगमेंट में 90% प्रॉफिट मार्जिन होता है, जो किसी भी अन्य क्षेत्र में नहीं है, केवल सर्विस सेगमेंट में। कौन सा भी सर्विस सेगमेंट ले लो, मैं केवल मेडिकल फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सर्विस सेगमेंट में प्रोडक्शन कॉस्ट 10 to 20% आती है और प्रॉफिट मार्जिन 80% to 90% चला जाता है, क्योंकि आप वहां पे सर्विस का चार्ज ले रहे हो। चाय भी पियेंगे आप, ठेले पे पियेंगे 10 रुपए को मिलेगी, ताज होटल में पियेंगे 1000 रुपए को मिलेगी। अब ऐसा क्या चेंज हो गया, सर्विस चेंज हो। दूध वही था, शक्कर वही थी, पानी वही था, चाय पत्ती वही थी, लेकिन चेंज क्या होगी, सर्विस चेंज होगी। तो हमेशा याद रखो, सर्विस सेगमेंट ही आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देता है। तो आपका क्लिनिक है, आपने कंसल्टिंग फ्री भी लिया, फिर भी आपका मशीन एनालिसिस का पैसा आ गया, आपको टेस्टिंग का पैसा आपको आ गया और ट्रीटमेंट का पैसा आ गया, आपने जो सर्विस दे दिया उसने हैप्पीली आपको पैसे दे दिए। अब मेडिक को फायदा क्या क्या हो गया, मशीन बीच में आने के कारण कंट्रोल्ड एंड टारगेट स्पेसिफिक एक्शन हो गया, एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग अच्छा हो गया, ड्रग एब्सॉर्प्शन बढ़ गया, कंट्रोल एंड टारगेट स्पेसिफिक एक्शन हो गया, पेशेंट रेगुलर फॉलोअप दे रहा है, रेगुलर मेडिसिन ले रहा है। आपने उसको बोला कि 6 to 8 सेटिंग्स आपको करनी है, तो वो 6 to 8 सेटिंग्स होने तक रेगुलरली आने वाला है। तो आप भी आयुर्वेद में, आयुर्वेदो अमृताणाम, जो व्यक्ति कंसिस्टेंसी रखेगा उसको रिजल्ट मिलने ही वाला है। अपने से होशियार अपनी औषधियां हैं, गुरुची हमसे ज्यादा होशियार है, ब्राह्मी हमसे ज्यादा होशियार है, अश्वगंधा हमसे ज्यादा होशियार है। वो अंदर जाके कोई नुकसान करने वाली नहीं है, वो पोषण ही करने वाली है, और पूरा पोषण फुलफिल होने के बाद बचा हुआ पोषण हेयर को ही जाने वाला है। तो रिजल्ट मिलता ही है, रिजल्ट ना मिलने को कोई गुंजाइश ही नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र में आप जो कंसिस्टेंसी रखेगा, जो कंटिन्यूटी रखेगा, उसको रिजल्ट मिलने ही वाला है। तो रिजल्ट मिलता है, पेशेंट खुश होता है, तो ऑटोमेटिकली आपने जो भी डिसाइड किया था आपका मोटो फुलफिल हो रहा है। तो इसलिए इसे जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स है उनको आप यूज करो। दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेतात रोगिणम, इस चीज को ध्यान रखो। इस प्रकार से आप हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर प्राणम, तो हेतु लिंग और औषधि का ज्ञान ले लो। ओके, ऐसे एक यूनिक टेस्टिंग पैटर्न आता है, स्काल फोटोग्राफी, स्काल्प एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक हेयर सैंपलिंग करना है आपको, वहां पे ड्राई स्काल्प है, सेंसिटिव है, नंबर ऑफ हेयर पर हेयर फॉलिकल कितने हैं, नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितने हैं, इन चीजों का आप डायग्नोस्टिक करके बताएंगे तो एक सक्सेसफुल पैटर्न आपके पास आएगा। दिस इज द सिंपल डिकोडिंग ऑफ कोड लैंग्वेज, सूत्र विस्तार ऑफ इंपॉर्टेंट श्लोकास फ्रॉम द बृहत्रयी। केश आयुर्वेद एंड कायुर्वेद इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एंशिएंट साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ हर एक पेशेंट के रूट शाफ्ट टिप से लेके लाखों इमेजेस है अभी,
हर एक पेशेंट का इमेज स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, उसके ऊपर एआई का वर्किंग करते हैं, रिसर्च प्रोटोकॉल डेवलप करते हैं। तो रिसर्च प्रोटोकॉल करके इतना सक्सेसफुल रेमेडीज अभी क्रिएट हो गए ग्रंथों से ही, कोई ग्रंथ छोड़ के करते नहीं है। लेकिन कृमि कुठार कहाँ देना है, सूक्ष्म त्रिफला कहाँ देना है, गंधक रसायन कहाँ देना है, ब्राह्मीवटी कहाँ देना है, शतावरी गणवटी कहाँ देना है, केशायुवटी कहाँ देना है, कंडुगण गण कहाँ देना है, ऐसे सटीक जो ग्रंथ में लिखा है वही कंडीशन आप निकालेंगे। तो 0 to 9 मोबाइल नंबर जैसा ही सिस्टम है, 3 दोष और 7 धातु का। देखो 3 दोष और 7 धातु कितने हो गए, 3 + 7 मतलब 10। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होता है। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर निकालो, टू द स्पेसिफिक मेडिसिन दे दो, 3 + 7 + 3 + 5 + 6 + 11 का पैटर्न फॉलो करो, कोड लैंग्वेज को डिकोड करो, आपको सक्सेसफुली रिजल्ट मिलता ही है। इसमें 3 दोष, 7 धातु, 3 मल, पंचमहाभूत और षड्रस, ये शाश्वत सिद्धांत है आयुर्वेद के। पढ़ना है तो शाश्वत सिद्धांत हमेशा पढ़ो, प्रैक्टिस भी करना है तो शाश्वत सिद्धांतों के आधार पर करो। आयुर्वेद इतना बड़ा है कि कोई लोग रस चिकित्सक है, कोई गृहिणी चिकित्सक है, कोई गुण चिकित्सक है, विंशति गुणा के ऊपर कुछ लोग काम करते हैं, कोई षड्रस चिकित्सक है, कोई त्रिदोष चिकित्सक है, कोई केवल पांचभौतिक चिकित्सक है। आप जैसा चाहे खुद को डेवलप कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। और ये सब सेम है, सिमेट्रिकल है, कुछ डिफरेंट नहीं है। वो जब आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। कुछ सक्सेसफुल केसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं एलोपेशिया के। ओके, पूरा एलोपेशिया है आफ्टर ट्रीटमेंट। यहाँ पे लेफ्ट साइड को बिफोर की इमेज है, राइट साइड को आफ्टर की इमेज है। आप देख रहे पूरा केस 100% सक्सेसफुल हो गया, मेडिसिन भी उनके बंद करवा दिए गए। ओके, इसी प्रकार से दूसरी केस आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा एलोपेशिया है, एक मुंबई की पेशेंट है। ओके, टोटली एलोपेशिया टोटलिस जैसी अवस्था है, भ्रू के भी बाल इसके चले गए थे। पोस्ट ट्रीटमेंट आप उसका सक्सेसफुल रिजल्ट देख रहे हैं, पूरे बाल वहां पे आ गए। अब एक पेशेंट मैंने दिखाया 17 साल के एज का, ये दूसरी पेशेंट मैंने भी दिखाई 10 इयर्स के एज ग्रुप वाली। ओके, आपको एक ब्यूटी दिखाता हूँ 65 इयर्स एज ग्रुप तक, ये 50 ईयर वाला 54 इयर्स का ये पेशेंट है जो अभी आपके सामने देख रहे हैं। उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। इसका बिफोर आफ्टर आप देखेंगे, पहले के बाल व्हाइट थे, वो भी बाल अभी ब्लैक आ गए पोस्ट ट्रीटमेंट। दिस इज द ब्यूटी। एज ग्रुप 54 है। तो कुछ लोग आपको कहेंगे 54 में कहाँ रिजल्ट मिलते हैं, आओ क्लिनिक में देखो। हाँ, आपका प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, आपने कॉलेज में सर हमें हमेशा कहते थे, तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, जो कॉलेज में है इस चीज को थोड़ा सा लाइटली ले लें। बहुत बार क्या होता है कि हमने आयुर्वेद के ना कॉलेज में जो शेर देखे ना, वो पिंजड़े में बंद है। हाँ, है ना। तो पिंजड़े में बंद शेर देख के आपको क्या पता शेर की धार कैसी होती है। आपको तो जंगल में जाके ही शेर देखना चाहिए ना। तो आपको आयुर्वेद के शेर देखने हैं तो प्रैक्टिशनर के पास जाओ, क्लिनिशियंस के पास जाओ, वहां पे आपको आयुर्वेद देखने को मिलेगा। जंगल में जाएंगे तो शेर पता चलेगा, उसका वर्किंग पता चलेगा। तो वैसे आप आओ, क्लिनिक देखो, पेशेंट्स देखो। हमारा क्लिनिक ज्वाइन करना टोटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। कभी भी आ जाओ, पेशेंट्स देखो, सीखो, खुद का प्रैक्टिस बढ़ाओ। शास्त्र को आपकी जरूरत है, शास्त्र को ब्रेन की जरूरत है, भारत को भी जरूरत है, और आउट ऑफ इंडिया भी बहुत स्कोप है। हमारा खुद का ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जर्मनी, दुबई, रशिया में भी क्लिनिक है। वहां पर भी लोग अलग अलग समस्याओं से परेशान है, और इन सब का एक ही आसान हल है, और वो है आयुर्वेद। तो आप सब लोग आयुर्वेद की तरफ आ जाओ। और ये देखो, स्किन एंड हेयर का सेगमेंट ऐसा है, प्रैक्टिस करने को थोड़ा इजी क्यों है, क्योंकि हेयर में 5 ही डिसीज है, कालित्य, पालित्य, दारुणक, अरुचिका और इंद्रलोक। हर एक के ऊपर एक 20-20 भी मेडिसिन सीखेंगे ना, तो 100 मेडिसिन केवल आपको सीखना है। रोज आप एक 10-10 मेडिसिन भी सीखेंगे ना, तो 10 दिन में 100 मेडिसिन अच्छी तरीके से सीख के होते हैं। अगर 10 दिन में आपको किसी एक फील्ड में स्पेशलिटी मिल रही है, एक नॉलेज मिल रहा है, देखो डिग्री से स्पेशलिटी नहीं आती कभी भी, हमेशा याद रखो, आपको नॉलेज से स्पेशलिटी आती है। डिग्री देख के आपका पेशेंट आने वाला नहीं है, पेशेंट आता है रिजल्ट देख के। जो पेशेंट ठीक होके जाएगा वही नेक्स्ट पेशेंट भेजता है। तो पेशेंट जो आते हैं ना, वो आप किस फील्ड में स्पेशलिस्ट है वो डिग्री से पता नहीं चलता है, आप किस फील्ड में स्पेशलिस्ट है वो रिजल्ट से पता चलता है।
तो जिसका रिजल्ट मिलेगा उसके पेशेंट आपके पास आते रहेंगे। तो आप 10 दिन में अच्छा सा पढ़ाई करो, रोज 10-10 ड्रग की पढ़ाई करो, आप 100 ड्रग भी करेंगे तो 100 ड्रग्स में सक्सेसफुली केश आयुर्वेद की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और सभी ग्रंथोक्त ड्रग है, ऐसा कुछ नहीं कि उसमें अलग ड्रग आपको कुछ यूज करने हैं, बस डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से। मोबाइल नंबर जैसे यूनिक होता है ना हर एक का, पापा नाम, मम्मी नाम, पिल्लू, माय सोना, माय बेबी, क्या क्या कुछ नाम रखने में क्या आप कुछ भी नाम रखेंगे, मोबाइल नंबर निकालना इंपॉर्टेंट है। वो मोबाइल नंबर सटीक होगा तो मेडिसिन सटीक जाने वाला है। तो व्हाट यू विल गेट थ्रू दिस कोर्स, तो आपको इसमें सिस्टमेटिकली एनाटॉमी आयुर्वेदिक व्यू से केश का, फिजियोलॉजी आयुर्वेदिक व्यू से, क्योंकि हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। मैं कभी कोर्स के पहले दिन पूछता हूं ना, अस्थि धातु क्रियात्मक है या रचनात्मक है, तो 99% स्टूडेंट बोलते हैं कि ये रचनात्मक है, क्योंकि दिमाग में ट्रेनिंग ही वैसा हो गया है कि ये रचना से आता है, बिलोंगिंग रचना से। ताकि दोष धातु और मल एक क्रियात्मक वर्ड है, अग्नि ये क्रियात्मक वर्ड है, शक्ति ये क्रियात्मक वर्ड है, शरीर का रस धातु अग्नि, रक्त धातु अग्नि, मांस धातु अग्नि, ये सब क्रियात्मक है। इनको आप रचना में नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आयुर्वेद की कुछ चीजें, वात है, पित्त है, कफ है, सप्त धातु है, त्रिमल है, पंचमहाभूत है, अग्नि है, शक्ति है, बल है, इन सब को आपको केवल क्रिया से ही समझना है, केवल क्रिया से। और जो शब्द रचना में आते हैं उनको आपको रचनात्मक दृष्टि से समझना है। तो एक बार केश की रचना और केश का शारीर, रचना शरीर और क्रिया शारीर सीखेंगे तो आप डिसीज को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। रोमकूपानुगतम पित्तम वातेन सह मूर्छितम, ऐसा इंद्रलुप्त में वाग्भट जी कहते हैं। तो रोमकूपगत जो पित्त है, मतलब आचार्य रोमकूप तक वात पित्त कफ को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम कभी सोच रहे हैं पेशेंट आने के बाद इसके रोमकूप में वात बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है या कफ बढ़ गया है, मैं इसको तेल धारा दे दूं, क्वाथ धारा दे दूं या तक्र धारा दे दूं, मैं उसको उष्ण औषधि दे दूं या शीत औषधि दे दूं? नहीं, हम सोचते ही नहीं है। हम सोचते नहीं है इसलिए रिजल्ट मिलते नहीं है। केश की प्रकृति निकालना शुरू करो, व्यक्ति की प्रकृति निकालना शुरू करो, तो वो हम इसमें सीखेंगे। अलग अलग इंटरप्रिटेशन सीखेंगे, पैरामीटर सीखेंगे, सामान्य विशेष सिद्धांत, संप्राप्ति, हर एक की संप्राप्ति, हर एक हेयर फॉल की संप्राप्ति अलग है। डाइट इंड्यूस्ड, स्ट्रेस इंड्यूस्ड, लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड। पांडु में सभी प्रकार के केश पालित्य आते हैं, कामला में भी आते हैं, श्वेत्र में भी आते हैं, अतिसार में आते हैं। तो हर एक में आप अलग अलग देखेंगे। ओके, तो आपका एक विजन क्लियर हो जाएगा। 5 ही व्याधि है, एडिशनल एक छठा व्याधि मैं हमेशा सिखाता हूं, दैट इज द अनवांटेड हेयर। सुश्रुत जी अनवांटेड हेयर के ऊपर आखा चैप्टर लिखते हैं। मतलब ये अभी की समस्या नहीं है, 5000 साल से ये समस्या है। अब आप अनवांटेड हेयर पे काम ही नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा सेगमेंट मॉडर्न को चला जा रहा है। और जिसके ऊपर हमारे आचार्यों ने 2-2 अध्याय लिखे, आचार्य क्या बोलेंगे, क्या मैंने अध्याय 2 वेस्ट किए, ये कलयुग के बच्चे तो आयुर्वेद पढ़ते ही नहीं है, अनवांटेड हेयर पे काम करते ही नहीं है। आप उन अध्यायों को पढ़ो, अनवांटेड हेयर के ऊपर काम करो। मुझे तो कभी कभी लगता है अभी केश आयुर्वेद बंद करो और अकेश आयुर्वेद शुरू करो। ओके, इतना स्कोप है अनवांटेड हेयर में। लेकिन वो अकेश आयुर्वेद सुनने को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने काया आयुर्वेद शुरू किया और उसमें स्किन के अंडर हम सभी अनवांटेड हेयर की ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आप देखो किसी को और आगे जाना है, अकेश आयुर्वेद शुरू करो और जोर से आपका केवल अनवांटेड हेयर स्पेशलिटी क्लिनिक डालो। इतने अभी छोटे छोटे बच्चियां भी जो है ना 5-6 साल की, 7 साल की, उनको भी अनवांटेड हेयर शुरू हो गए। उनका पूरा लाइफस्टाइल के ऊपर कंट्रोल आपको लेना पड़ता है, हार्मोनल कंट्रोल लेना पड़ता है, पीरियड्स के ऊपर कंट्रोल लेना पड़ता है। और ग्रंथ में दी हुए सब लेप और चूर्ण प्रतिसारण करेंगे, अवसाधन करेंगे और लेटेस्ट लेजर को सीखेंगे। लेजर सुश्रुत जी ने बताया है। ओके, लेजर कोई मॉडर्न की देन नहीं है, सुश्रुत जी ने कहाँ पे दिया है, रेफरेंस के साथ मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। टेक्स्ट रखो, ग्रंथ साथ में रखो और पेशेंट को ट्रीट करो। पेशेंट को रिजल्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उन चीजों को आपको अच्छी तरीके से देखना है। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, जिसको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट कहते हैं ना आजकल, वो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की तरफ आपको जाना है। ट्रीटमेंट प्लानिंग प्रिंसिपल सभी में। ओके, तो हम
अलग अलग केसेस देखेंगे, अलग अलग डिसीजेस देखेंगे, और उसमें मॉडर्न का व्यू क्या है, आयुर्वेद का व्यू क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो आपको मॉडर्न और आयुर्वेद ऐसा झगड़ा ही पहले दिमाग से निकाल देना है। पेशेंट क्योर करना है, ये हमारा सबसे पहला मोटो है। और उस मोटो के लिए डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन के लिए आपको मॉडर्न का सहारा लेना है, क्योंकि उनके पास डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स काफी अच्छे हैं। अपने ही ग्रंथ अभी हम डेस्कटॉप के माध्यम से, जूम के मीटिंग से सीख रहे हैं ना, या फिर हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हैं ना, तो ये तो मॉडर्न की मशीन से। तो मशीन हमेशा रहने दो ना मॉडर्न की, क्या प्रॉब्लम है? आपको लगता है कि वैद्य है तो दिल्ली आना है तो बैलगाड़ी लेके आए, बुलेट कार्ट लेके आए, क्यों? हम एरोप्लेन से भी आ सकते हैं ना। तो आयुर्वेद के वैद्य ने कभी प्लेन में बैठना ही नहीं है क्या? तो आपको सोच बदलनी पड़ेगी। वैद्य हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए, वैद्य प्लेन से जाना चाहिए। वैद्य ने जो भी लेटेस्ट मशीन से इंस्ट्रूमेंटेशन है उनके ऊपर कमांड लेना चाहिए। और आपके लिए बता देता हूं, आयुष गवर्नमेंट ने जो एक क्लॉज डाला है ट्रीटमेंट का, उसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड लेटेस्ट मॉडर्न प्रैक्टिस, ये बीएमएस डॉक्टर्स को अलाउड है। वो क्लॉज ही पढ़ते नहीं है लोग और बैठते रहते हैं केवल गुटी वटी और चूर्ण में ही। क्यों? आपका विचार आयुर्वेदिक होना चाहिए। आपकी मशीन मॉडर्न हो गई तो भी चलेगा, मशीन में झगड़ा नहीं है। चाइनीज लैपटॉप में चाइनीज भाषा ही डालेंगे ना, जापानीज लैपटॉप में जापानीज भाषा ही डालेंगे। तो लैपटॉप होता है, उसमें जो भाषा डालेंगे उसका वो लैपटॉप होता है। तो आयुर्वेद डालेंगे तो वो आयुर्वेद का लैपटॉप हो गया, आप समझ गए। संस्कृत डालेंगे तो संस्कृत का लैपटॉप हो गया। तो लैपटॉप के ऊपर किसी का हक नहीं है, लैपटॉप सबका है, ये मॉडर्न है। उसमें भाषा क्या डाल रहे हैं वो मैटर करता है। वैसे क्लिनिक में आप स्किन एंड हेयर एनालाइजर रखेंगे, लेजर रखेंगे, या और कोई मशीन रखेंगे, उसका प्री एंड पोस्ट ऑप आप आयुर्वेदिक करेंगे, आयुर्वेदिक थिंकिंग से उसको यूज करेंगे, तो वो आयुर्वेदिक ही होता है। तो इसको हमें समझना जरूरी है और वो चिकित्सा में भी हमने यूज करना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग चीजों को देखेंगे, इंजॉय करेंगे, शास्त्र सीखेंगे, लव आयुर्वेदा, लर्न आयुर्वेदा एंड लिव आयुर्वेदा। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो मैं अवेलेबल हूँ। हम प्रश्न के साथ चर्चा 2-5 मिनट करते हैं और उसके बाद रुकते हैं। यहाँ पे केश आयुर्वेद का नंबर है, संहिता स्मृति फार्मा का नंबर है, और डॉक्टर विवेक जी हैं आपको अभी गाइड करने के लिए। तो वो जो भी है आपका इम्पोर्टेंस देख लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं। विवेक जी पढ़ेंगे, मैं आपको आंसर दे देता हूँ, उससे सिलेक्टिव प्रश्न कुछ वो पूछेंगे। Yes sir, thank you so much for the excellent session. So let's go forward. ये मुझे लगता है हम ऑनलाइन ट्राइकोलॉजी कोर्स में इसके और कुछ ग्लिम्सेस जान सकेंगे। तो उसके कुछ क्वेश्चंस आए, तो आई एम जस्ट लर्निंग अबाउट दिस क्वेश्चंस। ओके, तो ये रसदुष्टि में जो हेयर फॉल होता है उसमें कैसे ट्रीटमेंट दी जाए, ऐसा एक ट्रीटमेंट आया है, ऐसा एक क्वेश्चन आया है। देखो, मैंने कोलकाता में वर्ल्ड आयुष कांग्रेस 6 में एक पेपर प्रेजेंट किया था, रोल ऑफ पीआरपी इन रसक्षय जन्य खालित्य। ओके, अब समझने वालों को इशारा ही काफी है। रोल ऑफ पीआरपी इन रसक्षय जन्य खालित्य, ऐसा पेपर वर्ल्ड आयुष कांग्रेस में प्रेजेंट करके एक तीर से हमने कितने निशाने लगाए, है ना। तो ऑटोमेटिकली आयुर्वेद में पीआरपी बेस्ड है, वो हो गया। आयुर्वेद वाले पीआरपी कर सकते हैं, ये अप्रूव हो गया। पीआरपी मॉडर्न वाले गलत कर रहे हैं, ये प्रूव हो गया। आप रसवृद्धि में पीआरपी करेंगे, आप डायबिटिक पेशेंट में पीआरपी करेंगे, कफज व्यक्ति में पीआरपी करेंगे, तो आप कीचड़ में और पानी डाल रहे हो, वहां पे और हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक होने वाले हैं और कुछ फायदा होने वाला नहीं है। वहां पे रसक्षय में आप पीआरपी करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलता है। तो हमारे यहाँ कितने पेशेंट आते हैं, मॉडर्न के यहाँ पे पीआरपी किया, कुछ फायदा नहीं हुआ, अपने यहाँ पे 6 सेटिंग किए, उनको रिजल्ट मिल गया। तो वहां पे जो रस धातु है उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे वो मैटर करता है। ओके, तो आप रसक्षय में अलग अलग इस प्रकार की चिकित्सा का विचार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने रस केशायु, रक्त केशायु, मांस केशायु, ऐसे कुछ टैबलेट्स बनाए हैं जो इसके ऊपर आधारित है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सर यस, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कोर्स के बारे में है
कि ये कोर्स करने के बाद मैं हेयर स्पेशलिटी क्लिनिक चला सकता हूँ क्या? ट्राइकोलॉजिस्ट मत लिखो, बस इतनी कृपा करो, हाँ, ऑनलाइन करके। बाकी आप नॉलेज ले लो, पेशेंट आप ले सकते हो। ओके, अपने बच्चों का प्रॉब्लम क्या है कि उनको डिग्रियां ही शो ज्यादा करनी है लोगों को। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों हम डिग्री के पीछे पड़ रहे हैं। हम नॉलेज के पीछे हमने जाना चाहिए। ओके, डिग्री मिसलीड करके हम लोगों की और गवर्नमेंट के सेगमेंट में हम लीगल प्रॉब्लम में आते हैं बहुत बार। तो आप इन चीजों से थोड़ा बचे रहिए, खुद को संभालो, नॉलेज बढ़ाओ। BAMS ये दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है, दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री। कुछ भी कर सकते हो, होटल डाल सकते हो, हॉस्पिटल डाल सकते हो, हाँ, आयुर्वेदिक पानी पूरी का ठेला चला सकते हो। क्या नहीं कर सकते यार आप BAMS डिग्री से? जो चाहे वो कर सकते हो। BAMS डिग्री को अंडर एस्टिमेट ना करो। आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा अलग अलग फील्ड में अगर कोई होगा तो BAMS डिग्री का बंदा ही है। बस वो मार्ग भटक गया है। आप शास्त्र की सेवा करो, हाँ, आप शास्त्र पे आ जाओ। यस, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है, इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है सर? हाँ, उसके बारे में आपको टीम इंफॉर्मेशन देगी। आपको कुछ नंबर से स्क्रीन पे वो नोट कीजिए और आप फोन कीजिए। यस, इसमें से जो लास्ट का प्राचीन संहिता गुरुकुल ये नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, यस, और कुछ क्वेश्चंस आए हैं लेकिन वो डिसीज रिलेटेड है। देन आई विल अगेन टेक। यश जी और पूजा मैडम भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी देंगे। थैंक्स टू यशार्थ एंड ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम जो है अपना, इनका भी हम आभारी हैं। इनके कारण आपको बहुत अच्छा नॉलेज सेशंस हो रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं। पूजा कोहली मैम हमेशा एक सपोर्ट में रहते हैं, यश जी भी हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। आपको जो भी पेशेंट रिलेटेड प्रश्न है वो आप पूछिए, जो भी कोर्सेस रिलेटेड प्रश्न है आप दिए गए नंबर्स के ऊपर पूछिए। समय का सेव करते हैं। ओके, यस, ओके सर। आप लोग खुद से माइक ऑन करके भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर किसी को चैट में नहीं लिखना है तो। हरीश आप सर, हाँ बोलिए। सर मैं डॉक्टर विकास कुमार सिंह हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं जो आपने अभी बोला था ना BMS के लिए, हाँ, मैं एक बार दोबारा सुनना चाहता हूँ उसको। अरे सर जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। पर मैं ये सच में दिल से बोलता हूँ सर, BMS का बंदा जो है ना वो मतलब अलग ही होता है, वो कुछ भी कर सकता है। ओके, सच में वो कुछ भी कर सकता है। बस उसने ठान लेना चाहिए कि मुझे शास्त्र की सेवा करनी है, जी, तो जाके वो आयुर्वेद करेगा। अदरवाइज वो करने को क्या, पानी पूरी से का ठेले से लेके वो आयुर्वेद के बड़े बड़े हॉस्पिटल तक वो चला रहा है। आजकल IAS IPS ऑफिसर्स भी BMS के ही आपको मिलेंगे। आप कहीं पर जाएंगे, कमिश्नर भी आपको BMS का ही मिलेगा। नहीं सर, तो मेरा खुद का भी हॉस्पिटल है। हाँ हाँ, तो मैंने पानी पूरी ठेले से नहीं स्टार्ट किया था, मैंने हॉस्पिटल ही स्टार्ट किया था। बढ़िया 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 सर। लेकिन आपने एक मोटिवेशन रखा सबके सामने, अच्छी बात है कि BMS का बंदा बड़े बड़े हॉस्पिटल डाल सकता है, 100 बेड के, 500 के भी, और वहां पे सब लोगों को इनवाइट करके अच्छे से रिस्पेक्ट देके। बस अगर रिस्क के बारे में ना सोचे ना, तो BMS वाला कुछ भी कर सकता है। डेफिनेटली डेफिनेटली रिस्क से डरना नहीं है। और कार्य पे BAMS का मतलब बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज नहीं है। बस अब मत सोचो। क्या बात है, वेरी नाइस, हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ओके, और किसी को कुछ प्रश्न है? चलिए, जो भी प्रश्न है यहाँ पे विवेक जी 5 मिनट आप सब लोगों के लिए अवेलेबल है, आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके, मैं अभी रजा ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Pooja madam, and thank you all attendees for giving so much love, for joining in very this short time. अविनाश जी, दीप्ति जी, जो भी यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, प्रथमेश जी, ओके, कुणाल जी, सभी को मैं शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर वर्षा, डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर कृणाल, ओके, थैंक्स टू ऑल। Thank you, Dr. Harish. Now I पूजा request मैम, Pankaj ji. पूजा मैम, ओवर टू यू। आप थोड़ा आगे का इंफॉर्मेशन देंगे तो ठीक होगा। जी, sure.
मैं पंकज जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप थोड़ा कोर्स के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज जो हैं रिगार्डिंग द कोर्स ही हैं। पंकज जी। Yes, ma'am. I think Dr. Vivek should explain much more clearly about the course, the admission process and all. श्योर श्योर। यस विवेक जी बात कर रहे हैं। Yes, namaste. After the exciting session, now I am here to tell you about the technicalities of the course and how we can take admissions and how we can go forward with this course. Firstly, the thing Dr. Harish sir said, the BMS is the biggest degree in the world. And when we add one skill to this biggest degree, then we make it a super specialty degree. So the course which we have planned for all of you is giving you a super consultancy post. This is an online certificate course in Ayurvedic trichology. So basically, you are going to be a super consultant in Ayurvedic trichology. This is a 10-day lecture series. Daily, we are going to be meeting for 1 hour in a theoretical session, and then a question answer session. It will be separately arranged for all of you. Okay. So the personalized question also will be answered in this course. So basically, starting from the anatomy and physiology of hair until the various disorders of hairs and their treatment, many treatment modalities which shall include the modern treatments, modern machines, and their specific protocols to use that kind of machines in hair disorders. So in this course, we are giving you a complete trichology analysis in a Ayurvedic way, sticking to the Shastra. So I invite all of you to join this course and give yourself a super consultancy aura. And for joining the course, the process is not difficult. It is very simple process. You just have to WhatsApp on the contact which we have gave you, 7028 681699. I'll repeating again, 7028681699, and you can join the course and you can learn much more about the Ayurvedic trichology. Whoever is hearing Dr. Harish sir for the first time, I must tell you, this is the Paramananda which anyone can feel whenever you hear him. So just don't miss the chance to hear him for next 10 days. The course is starting from 25th of February, and admissions are open right away. Thank you so much for bringing grace to the event, and thank you so much Harish sir for ever graceful lecture on Ayurvedic trichology, the department which you yourself has set the trend of. Okay, thank you so much. Thank you so much, everyone. If you have any problem regarding the course joining or any technical problems, please tell me. I am available here. You can unmute your mic and you can ask. सर हेलो जी भूमिका जी, किसका माइक ऑन है? आप ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। यस प्लीज मैम। हाँ जी बताइए। हेलो सर। मैम मैं डॉक्टर विकास हेलो कुमार सर, सिंह गुड बोल रहा इवनिंग। हूँ। हेलो भूमिका मैम, एक मिनट, मैम डॉक्टर विकास व्हाट कुमार अबाउट बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फीस? हेलो, डॉक्टर विकास कुमार को बात करने दीजिए, उसके बाद हाँ। जो सेकंड पर्सन है वो बात करेंगे। प्लीज, यस डॉक्टर विकास कुमार, प्लीज। यस डॉक्टर विकास। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे जो अभी हम लोग को क्लासेस दी गई है तो उसमें चीजें तो पढ़ाई गई है, लेकिन उनकी मात्रा नहीं बताई गई है कि हमें कितना देना है और कितने समय तक देना है। सर आप कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? अभी जो हुई है? नहीं, अभी की नहीं, पिछले 3 दिन की बता रहा हूँ मैं। पंचकर्मा की बात कर रहे हैं आप? कौन सी Yes. क्लासेस की बात कर रहे हैं? कवल गंडूश भी था। हाँ, तो सर उसमें तो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, आप वहीं पे पूछ सकते हैं। कल भी क्लास नहीं, है। उस समय पे हम लोग के माइक और वीडियो दोनों ऑफ किए जाते थे। नहीं, वो तब ऑफ होते हैं जब तक क्वेश्चन आंसर स्टार्ट नहीं होता। जैसे ही क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होता है आपके माइक ऑन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं, क्या मुझे इसका कुछ मिल सकता है? हाँ, कल जब क्लास होगी आप पूछ सकते हैं। कल संडे है। हाँ, कल 9 o'clock क्लास है सर। ठीक। आप पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी हो। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं सबको कि आप माइक ऑन कीजिए और पूछिए। अगर आप माइक नहीं भी ऑन करना, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं,
वो भी सारे रीड होते हैं क्वेश्चन। ठीक उसके मैम। बाद भी कुछ रह जाते हैं तो पर्सनल 1-to-1 अरेंज करा देंगे, बट प्रेफरेबली आप वहीं पे पूछ लीजिए, वो सही रहेगा। ओके हाँ जी, भूमिका जी बताइए। Good evening, ma'am. Myself, Bhumika. Ma'am, what about the registration fees for this trichology classes? विवेक जी, आप आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को? Yes, yes. The fees for this course, specifically course, अगर आप आज या maximum कल evening तक करते हैं registration, तो it is 4,999 rupees. Okay, sir. Thank you. Yes. Actual cost of course is 5,999 rupees, but we are offering this discount for the student who sincerely attended today's class, and it is only for up to tomorrow evening. Yeah. Hello. Yes, please tell me. Hello, myself Shraddha. Sir, course का timing क्या रहेगा? The course timing will be 8 p.m. to 9 p.m. daily. मतलब वही टाइम पे ज्वाइन रहना पड़ेगा क्या? Yes, but you can also listen to the recorded session. क्योंकि And वो कोर्स मतलब कितने दिन का होगा? Hello. सर डॉक्टर कैफी दिस साइड। Yes, सर please. ये कोर्स अपना कितने दिन तक होगा सर, ये ट्राइकोलॉजी वाला? It is a 10-day lecture series. तो 10 दिन के लिए ये कोर्स रहेगा starting from 25th of February except Sundays. ओके सर, थैंक यू। Yes. हेलो सर, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल रहेंगे ना? Yeah, surely. ओके, थैंक यू सर। हाँ, Thank you. सर myself डॉक्टर चंद्रशेखर। Namaste. ऑफलाइन कोर्स में और ऑनलाइन कोर्स में क्या तो डिफरेंस रहता है? Yes, definitely. The difference is lies in the names only. Offline course has a more of hands-on practicals. It has interactive sessions. In online course, there are limitations. You can't have a hands-on training purpose in online course. So the theoretical part, we can say this. It is quite same when we talk about trichology. But in offline course, we are also covering dermatology. So these two are totally different course. In online course, it is totally dedicated to the Ayurvedic trichology. सर ऑफलाइन कोर्स का कितना फीस लगता है? Offline course, the fees is right now, the fees for next batch is 40,000 rupees. 40,000। Yeah. ओके। विवेक सर, Yes, वो please. कितने दिन का रहता है? वो कितने दिन का रहता है? It is the 8-day offline course. 8 डे। ओके ओके, थैंक यू। विवेक सर, Yes, हेलो please. सर। डॉक्टर विकास। Yes. सर, ये ऑफलाइन वाला बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? The next batch for offline course is starting from 23rd of March. 23rd of March. Yeah. ओके सर, थैंक यू सर। Thank you. हेलो सर। Yes, please. हाँ, ये ऑनलाइन क्लासेस में ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में इसमें क्या क्या सिखाएंगे? Of course, the treatment aspect is included, starting from the diagnostic point of view, anatomy and physiology hair, diagnostic models of hair, and then definitely the treatment models of hair. मैं आ जाती तो बस ओके, और मेडिसिन प्रिपरेशन भी इसमें सिखाएंगे? Medicine Like- preparation we can't cover because medicine preparation is kind of a practical thing. ओके। But definitely जो चीजें इसके अंदर आती है, जैसे कि योग है, चूर्ण है, तेल है, उसके बारे में जरूर बताया जाएगा। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज पूरी क्लियर की जाएगी। मतलब हेयर ऑयल, शैम्पू, ये सब या ओके। Yes, please. Hello. सर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ेगा सर, ये वाले कोर्स के लिए, अपना ट्राइकोलॉजी के लिए? Yes, if you want to register for it, I'm just dropping a registration link in the group. You can directly click on that registration link and Yes, sir. you can continue with the registration. No issue with no, you don't have to talk with anyone. You can just click it and buy the course. ओके, थैंक यू सर। Yeah. So I request Pooja ma'am, can we put the registration link in the group? Sure. Yes, thank you. Yeah. Yes, Dr. Vivek. Okay, any more questions?
Any other query? Okay. Sir, So I just want to thank you, all of you. yes. Okay. Thank you so much. And yes, thank you so much. And I hope to see all of you in the upcoming online trichology course, and we'll meet again there, and we'll have much more exciting sessions there. Thank you so Sir, much. I will meet in the offline course. Sure, sure, sure. We are excited to meet you. Thank you, everyone. Thank you. Let's close the session here. Thank Yeah, you. yeah. Thank you. Thank you. And अगर किसी को भी ऑफर ये अवेल करना है तो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ बिफोर टुमारो by 7 p.m. Yeah, 7 p.m. is the right time. Yes. Okay. Thank you.